चंडीगढ़ में इन दिनों शहरी निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। यहां गुरुवार यानी कि 18 जनवरी को नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के मतदान होने थे, लेकिन इसे ऐन वक्त पर स्थगित कर दिया गया। दरअसल पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस वजह से चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। चंडीगढ़ में उस दौरान सियासी पारा गर्म हो गया जब मालूम हुआ कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। सूचना मिलते ही आप और कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि अपनी निश्चित हार को देखते हुए षड्यंत्र से चंडीगढ़ निगम में होने वाले मेयर चुनाव को रुकवा दिया, जिसे लेकर अब नेता और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाहर जमकर हंगामा किया है। आइए दिखाते आपको हंगामे की कुछ तस्वीरें। फोर्स सानू मिली हुई है, सीआरपीएफ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਐਂਟੀ ਰਾਈਟ ਫੋਰਸ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੈਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 144 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 9 ਵਜੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। 144 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਐਮਸੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਐਮਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਓ ਹੋਣਗੇ। ਐਮਸੀਜ਼ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਮ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਟੋਟਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਊਂਟਡ ਫੋਰਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੈਨਾਤ। ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ? ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰशासन ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ सारे ਨੂੰ कन्वे टाइम टू टाइम ਹੁੰਦੀਆਂ रही हैं। सर मैम बीजेपी कह रही है कि पंजाब पुलिस भी यहाँ पर आ सकती है और धक्काशाही कर सकती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है मैडम, जब होगी तो हम वी आर रेडी। ਮੈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੇਅਰ, ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ है। जिथे भी कोई प्रॉब्लम आएगी ਅਸੀਂ मौके पे। मैम आपने धारा 144 की बात की, तो क्या पंजाब पुलिस को एंटर करने दिया जाएगा कि उनको भी नहीं एंटर करने दिया जाएगा? नहीं, आपको पंजाब पुलिस किस पर्पस के लिए एंटर हो रही है जी? हमारे हम अगर ये इलेक्शन के लिए कोई ऐसा कोई भी नॉट जस्ट पंजाब पुलिस, अगर कोई और भी ऐसा यहाँ पे प्रोटेस्टर्स गैदर होते हैं तो उनको हम करेंगे, डिस्पर्स करेंगे यहाँ से। और उसके अलावा चंडीगढ़ शहर है, सारे आ जा रहे हैं, सुबह से अंदर आ जा रहे हैं, अपने कामकाज के लिए आ जा रहे हैं, उन पे कोई रोक नहीं है। मैम बिल्डिंग के अंदर अगर रिजल्ट के बाद नारेबाजी या जश्न का माहौल बनाया जाता है तो ऐसा लाओगे? नहीं, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। अगर कोई पार्टी सेलिब्रेट करना चाहती है उनको फैसिलिटेट करेंगे। हमारी फोर्स पूरी तैनात रहेगी। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਰੁਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਡਰੋਲ ਫਾਰਮ ਬੰਟੀ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਿਡਰੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ
ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉसी ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਹੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। Obviously they are not, they are scared like anything. They are not just wanting to hold the election. That is their simple purpose now at this time. We have a former member parliament from Chandigarh, आज ये जो इलेक्शंस होने जा रहा है, आज जो इलेक्शंस होने जा रहा है, यार सिंगल माइक कर रहे हैं। अभी मैं गेट से भी 10 स्टेप्स पीछे हूँ, अभी तो वहाँ पहुँचना है, लेकिन मुझे पता लगे कि आप अंदर भी नहीं हम लोगों को जाने दे रहे हैं, जबकि हमारे पासेज इश्यू हुए हैं, काउंसलर्स को नहीं जाने दिया क्योंकि उन्होंने आज जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उसको बीमार कर दिया। वो आज अस्पताल होकर चले गए, एकदम सडनली अस्पताल में चले गए बीमार होकर। पता लगेगा कहाँ क्या हुआ है। उनका सिर्फ मतलब एक है, लक्ष्य एक है कि आज चुनाव नहीं हो, क्योंकि जो उन्होंने प्रयास किए इतने दिनों में उसमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। इस देश को क्या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है भाजपा कि चुनाव ही रद्द करा दिए जाए? ये बहुत खतरा है इस देश के लोकतंत्र को भाजपा से। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश्र इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, आप सोच सकते हैं। देखिए, हम आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो, जिस मर्जी को चाहे नियुक्त कर दो। लेकिन चुनाव आज शेड्यूल्ड थे, निर्धारित तारीख थी, आज चुनाव होना था। अगर आज चुनाव नहीं होता है और भाजपा पहले सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार करती है, फिर प्रिसाइडिंग अफसर को बीमार करती है, फिर इलेक्शन रद्द करती है, ये साफ दिखाता है कि एक कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देखते हुए डर गई, बौखला गई और उस बच्चे जैसा बर्ताव कर रही है जो बच्चा गली क्रिकेट में आउट होने के बाद अपना बल्ला लेकर घर चले जाता है कि अब मैच नहीं होगा। देखिए, हम लोगों के पास आज इस इलेक्शन बिल्डिंग में जाने के लिए वैलिड पासेस थे। हम समय पर यहाँ पहुंचे, लेकिन ये बताया गया कि एंट्री बंद कर दी गई और एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि प्रिसाइडिंग अफसर अचानक से बीमार पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग अफसर भी बेचारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई अस्पताल उन्हें भर्ती नहीं कर रहा क्योंकि वो वास्तव में बीमार नहीं है। लेकिन ये हथकंडे हैं भाजपा के। ये दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। मेरा आप सबके माध्यम से देश की जनता को भी निवेदन है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें भी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा से छुटकारा पाना जरूरी है। अगर भाजपा बनी रही
तो वो एक एक कर सारे चुनाव रद्द कर देगी और भारत को नॉर्थ कोरिया बना देगी। हाँ जी, चलो जल्दी जल्दी ये जो सर जो आज जो कुछ हुआ सर कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर ये चुनाव स्थगित करा रही है। देखिए, उनका काम है आरोप लगाना और हमारा काम है जनता के लिए काम करना। अब हमें प्रशासन की तरफ से मैसेज आया कि आप अभी जब तक नए ऑर्डर नहीं आते तब तक इलेक्शन को डिले है। जैसे ही ऑर्डर आएगा हम भाजपा पूरी तरह से तैयार है और 100% जो है भाजपा तीनों पदों पर जीतने वाली है। लेकिन क्या सर इत्तेफाक है कि पहले सचिव बीमार हुए फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार हुए? अब देखिए, किसी की तबीयत खराब हो जाए कौन आज जानता है। मेरी 2 घंटे बाद मेरी तबीयत खराब हो जाए किसी को भी नहीं पता। तो ये तो सभी के साथ है। कांग्रेस ने आप सीटा मिला के 20 सीटा बनिया थे, बीजेपी को 14 सीटा थे, किवें जित सकती है? देखिए, 20 नंबर 20 होने से कुछ नहीं होता। उनके पार्षद भाजपा को वोट करने वाले हैं, पहले भी एक बार 2 बार हुआ है और उनके ज्यादातर पार्षद जो हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि उन्होंने भाजपा की वर्किंग को देखा है। पिछले 8-10 साल से शहर के अंदर जिस तरीके से भाजपा ने काम किया है और उनके 2-3 पार्षद तो मैं कह रहा हूं कि वो एक बार चंडीगढ़ की हद में उनको छोड़ दें। अगर वो 2 घंटे बाद भाजपा ना ज्वाइन करना, भाजपा ज्वाइन कर लेंगे 2 घंटे बाद। देखियो, कहने तो कोई कुछ भी कह ले, लेकिन वो साडी विचारधारा नाल जुड़ना चाहते हैं, वो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने रोकया जा रहा है, दबाया जा रहा है। उन्होंने नाल 5-5, 10-10 बाउंसर रखे जा रहे हैं, वो फोन ते गल नहीं कर पा रहे, उन्होंने अपने परिवार नाल गल नहीं हो रही। ये बहुत ही शर्मनाक जड़ी है चीज आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दे लोग कर रहे हैं। देखिए, अगर वो बाहर ना लेके जाते तो मुझे लगता है कि हम 19-20 तो वैसे ही पूरे कर लेते हैं। तो ले गए, अब क्या करें? देखिए, जादुई आंकड़ा 100% पूरा होगा। हम वेट कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से ऑर्डर आने का। जैसे ही ऑर्डर आएगा भाजपा 100% चुनाव। आप क्या मानते हैं कि चुनाव स्थगित हुए हैं? आपकी क्या डिमांड है? जल्द होने चाहिए चुनाव? नहीं जी, हमारी डिमांड है कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए और जो आम आदमी पार्टी के गुंडे इस शहर में घूम रहे हैं पिछले 5-10 दिन से, उनको शहर से भगाया जाए। चंडीगढ़ पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, आज भी हमने देखा है, और हम चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो और भाजपा ये चुनाव जीतने वाली है। क्या लगता है कि आज इलेक्शन हो पाएंगे आपके नहीं? देखिए, अभी हम वेट कर रहे हैं कि आज हो। कोई अभी ऑफिशियल आपको आया है? अभी कोई हाँ, पोस्टपोन का हमें कॉर्पोरेशन की तरफ से मैसेज आया। राघव चड्ढा जी आए थे, उन्होंने कहा बीजेपी घबरा चुकी है, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। राघव चड्ढा जी तो खुद घबरा रखे हैं। पूरे देश में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं, कैसे अलायंस में कोई कहता है कि हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ, नीचे कह रहा है हमारा अलायंस हुआ है। तो इनका तो अभी अपना ही नहीं पता इनका क्या होना है, बोली जाने दो। मेरा जी कंवरजीत सिंह, सीनियर डिप्टी मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़। हो गया, आज मेयर इलेक्शन होंगे कि अब नहीं होंगे? जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बीमार है, अब होंगे? भैया हम कैसे बता सकते हैं? हम तो खुद ये पता करने के लिए आए हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, सभी जो लोग हैं, ये हमारे महामंत्री हैं, ये मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है। अगर हमें होता कि हमें पता कि इलेक्शन होना कि नहीं होना तो हम ना आते। हम तो खुद यहाँ पता करने के लिए आए हैं। अच्छा, राघव चड्ढा जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था बीजेपी भारत को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है, अपनी हार से बौखलाए थे इसलिए इलेक्शन नहीं करवाए। उसको बोलो कि आप पहले भगवंत मान से तो बात कर लो, वो कुछ कहता है, ये कुछ कहता है, पहले उससे तालमेल कर लो। कह रहे ये इंडिया लाइन से घबरा गए हैं। आप नहीं घबराए, वो घबराए हुए हैं। पंजाब में 1.5 साल हो गया, इलेक्शन हुए क्या? ये सब जो है, ये दोनों मिलके इस इलेक्शन को, माहौल को खराब करना चाहते हैं। अच्छा, वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले गए, हम कब कहते हैं पहले जो गए थे, तब इनकी दोनों एप्लीकेशनें खारिज हो गई। पढ़ी है आपने आज? तो चाहे किसको, कोई सभी को दिखा रहे हैं। किस मुंह से कह रहे हैं पंजाब में 1.5 साल से इलेक्शन नहीं हुआ? अस्पताल में एडमिट क्यों से अस्पताल में? भैया हमें नहीं कुछ पता, अभी हम जा रहे हैं। ये तो वैसे ही वो है, बीमार हो सकता, कोई भी हो सकता है, उसकी जगह पे दूसरा आदमी लग जाएगा। इतनी क्यों ये बर्बाद कर रहे हैं? बंधक तो इन्होंने बना रखी है ना। जानकारी आपको भी नहीं है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आप भी पता कर रहे हैं? भैया हम तो पता कर, हमें मैसेज आया है, उस मैसेज के भाग के ऊपर हम यहाँ पे आए हैं। मैसेज में क्या है कि यही है कि अभी अनिल मसीह जी की तबीयत खराब है, उसके नए निर्देश के ऊपर जो है, जो होगा वो आपको बताया जाएगा। सभी काउंसिलर को आया, किसी काउंसिलर से देखना। इस तरीके से इलेक्शन में ऑफिशियल कुछ नहीं आया।
तब ये समय बताया कि क्या आज चंडीगढ़ में आम आदमी और कांग्रेस का कैंडिडेट था वो इलेक्शन आज होंगे या नहीं, ये सवाल तो खड़े हो चुके हैं। ये देखना होगा कि क्या जीत दर्ज होगी, अगर जीत की बात करें तो मेजॉरिटी की बात करें तो ले सकते हैं कि हार कांग्रेस के पास है। फिर एक बात तस्वीर यहाँ पे हंगामा है, पुलिस की बहुत सुरक्षा व्यवस्था की गई है, अंदर किसी को जाने नहीं दिया। मैसेज नहीं है किसी भी पार्टी, लेकिन यहाँ पर पुलिस हमें रोक रही है कि थोड़ा साइड तक बुला दो यार, पहुंच गए नहीं शुरू हो चुकी है, 2340 सारा कुछ बोल लाइव 20-25 मिनट ਚੱਲਿਆ।